लोगों ने ये कोविड का स्ट्रेस ले लिया है, पैनिक क्रिएट हो गया है, तो एंग्जाइटी आ गई है इतने ज़्यादा कि किसी चीज़ को हाथ लगाने में भी डरते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम को नुकसान देती हैं कि जो अपना मास्क है उसको बार बार आप टच मत करें, फ्रंट से नाक के सामने से बार बार उसको उतारना या करना, हमेशा उसको साइड से उतारें। सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपने जो हाथ हैं उनको बार बार अपने आँख में, कान मतलब मुंह में, नाक में, इनमें आप इसको अवॉइड करें। आजकल आप सुनने में आ रहा होगा इट इज़ बिकमिंग एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब है कि जैसे हम लोग एक कमरे में बैठे हैं एंड हम लोग उस कमरे में कोशिश करें कि अगर उसमें कोई खांसता है या इवन डक्ट्स एंड एसीज़ के बारे में बार बार ये बोला जा रहा है कि एयरबॉर्न वो जो एरोसोल जनरेट करता है वो कुछ मिनट से लेके घंटों तक आप उस रूम में वो सर्वाइव कर सकता है। तो सपोज़ हम लोग उस कमरे में बैठे हैं, वी आर ओके विद इट, और हम लोग उस कमरे में एंटर करते हैं, ऑलरेडी जो उस कमरे में कोई बैठा है वो उसने खांसा, उसके वो वायरस था, ही वेंट अवे एंड यू केम इनटू दैट रूम, और आपने सोचा उस कमरे में तो कोई नहीं है तो इसलिए अपना मास्क उतार लेते हैं, देयर यू कुड कैच दैट वायरस। जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी अच्छा होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है, तो बाहर जाते भी हो तो वायरस से जिनसे भी हम बचना, हमारी एक क्षमता जो है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है अच्छा बनता है। कि ज़रा सा भी किसी को छींक जुकाम होता है तो वो पेशेंट भागता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया। लॉक योर सेल्फ, लॉकडाउन तो बाद की बात है, लॉक योर सेल्फ। आप अपने, नॉट योर मेंटल वेलबींग, डोंट लॉक दैट। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करना। Hello everyone and welcome to Chat House. I am Simardeep Kaur and I'll be your host for the evening. Today we have with ourselves in the studio Dr. Kritika Bhanot, who is an Ayurvedic medical officer at Kharak and has also been doing a commendable job spreading awareness about COVID-19 precautions through Ayu Samvad. Welcome to Chat House, Dr. Kritika. Thank you so much. So let's start with, why don't you explain to us what exactly is Ayu Samvad? So today, thank you so much for inviting me for your chat show, and it is a pleasure to share all the useful knowledge with the public also. We are, as you already told, I'm working as an Ayurveda medical officer. So from the Department of Ayurveda Punjab, we are putting up this effort on the behalf of our Ministry of Ayush and All India Institute of Ayurveda, New Delhi, which have organized Ayu Samvad session for the public. It is awareness program and it is on a very large scale in which they are covering almost 1.5 crore people with this Ayu Samvad session, and minimum like 5 lakh lectures would be delivered. So this program started on 26th January and now it is being still, we are taking sessions. Every Ayurveda practitioner throughout India, whosoever, even if it is a PG scholar, PhD student, anyone who is into Ayurveda, they are holding minimum 5 lectures on Ayu Samvad this session, and they are covering all the awareness regarding the COVID, because last year our topic was Ayurveda for COVID pandemic. So with the continuity of that topic, now they are again taking this initiative to cover the large scale population, making them aware regarding the COVID, how preventive and promotive it could be, and what would be the measures to hold on that scale, and post-COVID management also. So they have taken diet, like significance of diet, lifestyle habits, yoga, meditation, so many things have been covered in that. So what are the basic precautions that each one of us needs to take in order to stay safe from the virus? You see, for the last 1 year, everyone is now aware of COVID. एंड वी हैव ऑल गॉन थ्रू, हम सब हमने इसके साथ जीना सीख लिया है, हमें सबको मालूम है कि कोविड क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लास्ट ईयर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से गाइडलाइंस इसकी जारी की गई, जिसके अंदर उन्होंने इसको कोविड के सेफ्टी मेजर्स के बारे में, जैसे हमने पैरेलल टू दैट मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, उन्होंने हमेशा मास्क के ऊपर, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, रेस्पिरेटरी हाइजीन के ऊपर, हैंड वॉश विद सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें हम 1 साल से सुनते आ रहे हैं. वी हैव ऑल डन आवर होमवर्क इन दैट. But despite of that fact that last year the wave which came was not that way, which is now being called as a super spreader.
because in Punjab we have that variant is spreading on a very fast way, and despite of taking all those things, mask, hygiene, hand sanitizing and all that, still we need so many safety measures, and that includes that we need to we have to make our immune system very strong for it. We have to take care of our diet also. We have to take care of the hydration of our body also. So we have to take good sleep also. It's not merely that we could prevent just because you all know that there is no medicine for it. It is a virus. So for this second wave, what we are looking now, it has become necessary for all of us to follow those instructions also, and to follow present another edition of what Ayur Samvad is carrying, to be more on a preventive and promotive mode, so that we could educate people to stop the transmission of that virus through our choice of diet, through our living standard, life standard, through taking adequate amount of balanced food. So all these things have been measured for the safety. But again, we will be coming to the point that people became so relaxed that कोरोना तो चला गया, जितना दिसंबर तक, अब दोबारा से उसको हमने देखा है, तो वो दोबारा से उस वेव जो है, इट स्टार्टेड इन द फेब, एंड एवरीवन स्टार्टेड गैदरिंग, एंड सब जितना फंक्शंस शुरू हो गया, उतने में वो दोबारा से जो वेरिएंट है दैट स्टार्टेड अगेन स्प्रेडिंग. तो ये जो चीज़ अब इस वक्त हमारे सामने है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ सेक्टर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो जितने भी डॉक्टर्स ड्यूटी इस वक्त दे रहे हैं कोविड के लिए. तो उस सेफ्टी मेजर में तो सब डिस्टेंस का तो बात करते हैं, लेकिन 6 फीट डिस्टेंस जो मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे मास्क है. अगर मैं इन छोटी जो बेसिक 4 बातें हम सुनते आए हैं, उनमें भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जो अपना मास्क है उसको बार बार आप टच मत करें, फ्रंट से नाक के सामने से बार बार उसको उतारना या करना, हमेशा उसको साइड से उतारें. सेकेंड थिंग इज कि आप अपने जो हाथ हैं उनको बार बार अपने आंख में, कान मतलब मुंह में, नाक में, इनमें आप इसको अवॉइड करें. बिकॉज हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम किन किन सर्फेसिस को टच करते हैं, वी हैव दैट टेंडेंसी. तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर आपको कहीं भी पानी मिलता है, साबुन, तो बेस्ट है कि आप सोप वाटर यूज करो. नहीं मिलता देन सैनिटाइजर के लिए बोला जाता है. रेस्पिरेटरी हाइजीन बार बार समझाया जाता है. खांसी जुकाम, नॉर्मल मौसम चेंज हो रहा है, छींक आता है, पीपल डू हैंड से हम अपने आप को रोकते हैं, बट कई बार नहीं भी ध्यान होता. एंड वी हैव बीन, बच्चों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, नहीं ध्यान रहता. नाउ लास्ट 1 साल से वो बार बार बोल रहे हैं कि जब भी आपने इसमें रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना है, तो एल्बो से आपने स्नीज आता है, आपको छींक आता है, तो एल्बो यूज करिए, सो दैट ये पार्ट हमारा रूटीन में नहीं यूज होता, एंड हम बार बार हमारे जो हाथ हैं वो बचे रहेंगे. एंड अगेन हैंड वॉश का कि टिल 20 सेकेंड्स हमें हैंड वॉश करना है, जो कि मैंडेटरी है. लेकिन ये सब चीजें नाउ वी कम अक्रॉस, डिस्टेंसिंग का नहीं ध्यान रहा, मास्क बहुत कम हो चुका है बार बार इस चीज के लिए, बिकॉज इसमें 2 तरह की चीजें हैं. इफ वी सी दैट इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. जब हम छींकते हैं, जुकाम या खांसते हैं, तो इसके जो कण हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, दे स्प्रेड इन द एयर, राइट. सो इट इज बेसिकली, यू कुड से कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है, वो उसके जो ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे फ्लोर पे गिरते हैं, जो लार्जर होते हैं, जो बाय ग्रेविटी दे फॉल डाउन ऑन द फ्लोर. एंड अगर उनके 1 फुट के आसपास कोई भी इंसान खड़ा है, तो वो उस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैरी कर जाएगा, और वन हु इज क्रॉसिंग अवे. सो इट इज ऑलवेज डन कि अगर आपका ये 6 फुट का दूरी होगा, तो वो ड्रॉपलेट पहली बात तो आपके ऊपर, वी विल अवॉइड दैट एंड वी विल नॉट फॉल सिक ऑफ इट. एंड सेकेंड थिंग इज कि आजकल आप सुनने में आ रहा होगा, इट इज बिकमिंग एयरबॉर्न. एयरबॉर्न का मतलब है कि जैसे हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, एंड हम लोग उस कमरे में कोशिश करें कि अगर उसमें कोई खांसता है, या इवन डक्ट्स एंड एसीज के बारे में बार बार ये बोला जा रहा है कि एयरबॉर्न, वो जो एरोसोल जनरेट करता है, वो कुछ मिनट से लेके घंटों तक आप उस रूम में वो सरवाइव कर सकता है. तो सपोज हम लोग उस कमरे में बैठे हैं, वी आर ओके विद इट, और हम लोग उस कमरे में एंटर करते हैं, ऑलरेडी जो उस कमरे में कोई बैठा है, वो उसने खांसा, उसके वो वायरस था, ही वेंट अवे,
एंड यू केम इन टू दैट रूम और आपने सोचा इस कमरे में तो कोई नहीं है तो इसलिए अपना मास्क उतार लेते हैं, देयर यू कुड कैच दैट वायरस। सो हमें ये एयरबॉर्न जो है कि वो एयरबॉर्न बनने की क्षमता रख रहा है, दैट इज जहां क्लोज्ड कॉम्पैक्ट है, वेयर डक्ट्स आर देयर, सेंट्रल डक्ट्स हैं, एसीज हैं। सो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम इन सब चीजों को, सेफ्टी मेजर्स को अपनाएं, दूरी को अपनाएं और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। ये सब चीजें जब हम साथ साथ अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, हम इससे बच सकते हैं। And what are the things that we need to add to our daily diet, or what things should we consume every day to boost our immunity? फॉर बेसिक थिंग्स जो हम लोग शायद आप आयुर्वेद का अगर, बिकॉज आई एम फ्रॉम आयुर्वेदा बैकग्राउंड, सो ऑलवेज टॉक अबाउट कि जो आयुर्वेद है वो एक धरोहर है। दिस इज अ क्लिनिकल विजडम एंड दिस ट्रेडिशन हैज बीन कैरिड, जिसमें आप सुनते होंगे दादी नानी के नुस्खे, बट नाउ दैट थिंग, दैट ट्रेडिशन, दैट कल्चर, वी आर रिवाइविंग दैट कल्चर इन द फॉर्म ऑफ दिस सो मैनी लाइक हमारे घर में जितने हम स्पाइसेस यूज करते हैं वो उसमें आजकल जैसे अदरक है, धनिया है, दालचीनी है, तुलसी है, गिलोय सबको पता है, तुलसी जो हम सब अपने घरों में रखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं दे आर बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम। बट ऑब्वियसली हमारे इम्यून सिस्टम के रिलेटेड कुछ 2-3 चीजें और इम्पॉर्टेंट हैं कि ये जिन चीजों को मैंने बोला है ये हमारे जरूर डाइट में आनी चाहिए, एंड बॉडी टू बॉडी, प्रकृति टू प्रकृति, एज फार एज द आयुर्वेदा इज कंसर्न, हर एक के जो हम लोग उसमें लोग बिना किसी की सलाह मशवरा लिए दे स्टार्ट टेकिंग ऑन दैट गूगल और व्हाट्सएप एंड दे स्टार्ट टेकिंग कि मैंने इतना डाला और इतना पिया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, वो बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ द डोज। मात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा एंड वी पुट एम्फोसिस ऑन दैट सेल्फ मेडिकेशन शुड नॉट बी डन। हाँ, जो दाल सब्जी में हम स्पाइसेस यूज करते हैं या हमें, अगर आपने आयुष क्वाथ सुना होगा, इम्यून सिस्टम के लिए वो बोला जा रहा है, तो आपके इम्यूनिटी बूस्टर में तो अगर हम देखें तो गर्म पानी सुबह उठते सार या हम दिन में थोड़ा थोड़ा सिप करें, जो गर्म पानी है वो इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है, वो हमारे लंघन का कर्म करता है आयुर्वेदा के सिनेरियो से। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो हमारे दिस च्यवनप्राश, वी हैव बीन लिसनिंग लॉट, संजीवनी ऐप हमारे मिनिस्ट्री ने लॉन्च की। उस संजीवनी ऐप को जब देखा गया तो 87% ऑफ द पीपल दे फॉलोड आयुर्वेदा गाइडलाइंस जो हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने दी। तो उसमें गर्म पानी पीना, ये तुलसी, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, जो अदरक सुखा के सुंठी जिसको हम पंजाबी में सुंड कहते हैं, वो सब चीजें जो है हर किसी के घर में, उसके ऊपर उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन उनकी मात्रा, लाइक अगर हमने दालचीनी लिया या तुलसी लिया, मुनक्का लिया, तो वी कैन यूज पिंच ऑफ इट। अगर काली मिर्च ली, सुंठी, ये गर्म है तो प्रकृति के हिसाब से मई जून का महीना आ रहा है तो वी शुड नो हाउ मच, 1/4 ऑफ इट। सो ये गर्म पानी में उबाल के लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठंडा होने पे इसमें गुड़ डाल सकते हो। एंड अदर थिंग्स लाइक अश्वगंधा इज देयर, जो गिलोय घनवटी सब जानते हैं, एंड इट हैज डन वंडरफुल इन द इम्यून सिस्टम। और हमारी एक जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, लाइक हम लोग अपने अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, एंड वी आर ऑल सफरिंग बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम पूरी नींद नहीं लेते हैं, बल्कि अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, बट वी आर डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ सो मेनी, हम इसको स्ट्रेस लेवल माने। अब लोगों ने ये कोविड का ही स्ट्रेस ले लिया है, पैनिक क्रिएट हो गया है, तो एंजाइटी आ गई है इतने ज्यादा कि किसी चीज को हाथ लगाने में भी डरते हैं। तो वो ये सारी चीजें इम्यून सिस्टम को नुकसान देती हैं। बाहर का प्रोसेस्ड फूड, जितना हम लोग गैदरिंग में जा रहे हैं बाहर खा रहे हैं, जितना सिंथेटिक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, रेफ्रिजरेटेड फूड है, जो फ्रिज का हम लोग ले रहे हैं, या फ्रोजन फूड है, ऑल दीज आर अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम। अच्छा अग्नि है आपका, पाचन शक्ति अच्छी है, आप डाइजेशन अच्छा करते हो, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। लोग च्यवनप्राश की बात करते हैं, अगर अच्छा पाचन है तो आप उसको ले सकते हो। इफ यू डोंट हैव तो मल्टीविटामिन्स खाने से ताकत नहीं आएगा, योर बॉडी वोंट हेल्प यू आउट फॉर दैट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी फर्स्ट, and then we could work out for the other things, how to improve our immune system. Yeah. Okay. Now, apart from diet, exercise is also a very important part of life. Yeah. So what type of exercises can help us boost our immunity? Exercises, like you see, there is a proper national clinical management protocol on COVID.
and in that from the Ministry of Ayush, and in that from the mild to moderate to severe, like obviously mild and moderate cases have been treated under the Ayush, whereas the severe cases, they have been put on the referral to the higher centers for the better treatment and protocol. तो उसमें योगा का एक कनेक्शन है. Basically yoga, which is very good for the pulmonary functioning and cardiac activity को improve करता है. जो योगा है वो हमारी lungs की capacity को increase करता है. जो mucociliary improvement उसी से हम योगा से करते हैं. हमने टीवी में योगा को देखा तो वो आसन के रूप में देखा है. तो योगा के अपने 8 अंग हैं जिसमें कि हम योगा को और elaborate करते हैं. अगर आप समझें तो जो योगा है, that is the spiritual face of Ayurveda. So that is WHO की डेफिनेशन में जो उन्होंने कहा कि सोशल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, एंड इसमें अब उन्होंने दे हैव एडेड मेंटल वेलबींग के साथ साथ स्पिरिचुअल वेलबींग. दैट स्पिरिचुअल वेलबींग योग से है. तो अगर अब कोविड है तो योग नहीं है, अदरवाइज भी योग था. जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी अच्छा होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है, तो बाहर जाते भी हो तो वायरस से जिनसे भी हम बचना, हमारी एक क्षमता जो है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है अच्छा बनता है. एक्सरसाइजेस में प्रोटोकॉल में एनेक्चर दिए हैं. जो लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उनके लिए भी एक पूरा प्रोटोकॉल है कि आपने कैसे, जो नॉर्मल है हम लोग जैसे उसमें हम लोग जो प्रॉपर लूजनिंग एक्सरसाइज से लेके सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर्स, मुंह के भार, पीठ के बल, ये सारे पोस्चर्स का एलैबोरेट उन्होंने किया है. प्लस उसमें उन्होंने आपका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एंड देन मेडिटेशन. और जो कोविड से हो चुके हैं प्रभावित, जो पोस्ट आफ्टर देयर ऑन द रिकवरी फेज, उनके लिए बैठकर योगा के जो हैं प्रोटोकॉल, कि कैसे उन्होंने बैठ के ताड़ासन, उष्ट्रासन, उन्होंने एक प्रॉपर इसका प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया है, जिसमें कि उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग जो हम करते हैं, योगिक एक्सरसाइजेस में हैंड इन आउट, कैसे हमने श्वास लेने के साथ अपनी मूवमेंट्स देनी है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है. ये सारा जितना भी क्रिया है योगा का हैज बीन गिवन फॉर preventive also and post COVID also. So that has already been mentioned in a great way. Yeah. So if a person has already been tested positive for the virus, then what can he or she do on a personal level to recover as quickly as possible? You see, apart from yoga, you've already mentioned. Yeah, the thing is, when you get a report and you see you are positive, and if you are asymptomatic, हमें कोई symptom नहीं आ रहा, तो it is better that we should isolate ourselves at that very point. Even we are having 3-4 members in our home, and हम अपने आप को isolate करते हैं रूम में, and monitoring होता है कि जितने भी हमारे कोविड के symptoms हैं, पहले symptoms थे कि ड्राई कफ है, fever is there and breathlessness is there. Now the symptoms have been bit more elaborated with this loss of smell, taste, and diarrhea, vomiting, conjunctivitis, rashes on the body, even body aches, joint pains, all this have been elaborated. So there has been confusion for the, कि जरा सा भी किसी को छींक जुकाम होता है तो वो पेशेंट भागता है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया. सो बेस्ट इज आप अपने आप को नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स और 72 आवर्स वी कैन मॉनिटर आवरसेल्फ कि वो जो हमें कफ कोल्ड के सिम्टम है वो मैनेजेबल हैं एट होम. तो उसमें अगर आयुर्वेदा की दृष्टि से देखोगे तो आयुष क्वाथ, आपका गिलोय घनवटी जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, देन गर्म पानी, एंड देन देर आर अदर गार्गल्स. गार्गल्स में मेरे पास अब ओपीडी में पेशेंट आता है तो उनको बोलते हैं कि जो गरारे करने हैं आप नॉर्मली 2 टाइम दिन में गरारे कीजिए, जिसमें कि आप हल्दी डाल सकते हैं या त्रिफला के गरारे कर सकते हैं, मुलट्ठी के गरारे कर सकते हैं, सेंधा नमक डाल के आप गरारे कीजिए. ये प्रिवेंटिव भी है, प्लस आप जब अपने एसिम्प्टोमेटिक हैं आप उसको उसी वक्त मॉनिटर कर रहे हैं तो ये चीज़ बढ़ेगा नहीं. ऐसे ही स्टीम का है कि अगर आपने भाफ लेनी है तो जैसे ही लगता है कि मुझे कफ कोल्ड है, हमें रूटीन में वायरल चेंज है तो वी कैन टेक दैट स्टीम. तो स्टीम में अजवाइन और पुदीना का पत्ता या हल्दी, ये सब प्रोटोकॉल भारत सरकार की तरफ से, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस में दिया गया है स्टीम एंड गार्गल्स का. इसके अलावा अनु तेल इज देयर, ऑयल, नेजल इंस्टिलेशन, वी कैन पुट दोज ड्रॉप्स इन आवर नोज, क्योंकि वो नोज के अंदर एक जो हमारे म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे लेयर बनाता है,
एंड दैट बिकम्स एज अ बायो मास्क। ये वाला मास्क तो हम बाद में पहनते हैं, दैट इज अंदर का बायो मास्क जो कि वायरस को प्रिवेंट करने से बचाता है। तो जो रूटीन में लोग यूज करते हैं, अगर किसी के पास अनु तेल नहीं है, आपके पास बादाम रोगन है या गाय का घी है या आपके पास सरसों का तेल है, पुराने लोग सरसों का तेल रूटीन में यूज करते थे, नाभि पे लगाते थे, कानों में, नाक में, दे वर ऑल हैविंग गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स, but that's not there. So this is where the difference is, that they are telling that you follow this, monitor yourself, saturation ऑक्सीजन की चेक करते रहो, your pulse and if saturation is all right, and within 1 week you start recovering with all these protocol plus Giloy and ashwagandha. You can आयुष क्वाथ, जो आयुष क्वाथ है उसकी डोज आप मात्रा जो है वो आप रोटेशन में भी ले सकते हैं। अगर किसी को पित्त विकार है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हाइपर एसिडिटी है, तो वो उसको अपने डोज के हिसाब से कम भी कर सकता है। अगर हमने 4-5 चीजें बताई हैं कि तुलसी लो, दालचीनी लो, काली मिर्च लो, सुंठी लो, तो ये जरूरी नहीं कि आप पांचों की पांचों चीजें एक टाइम डालो। यू कैन हैव इट ऑन द रोटेशन बेसिस ऑल्सो, सो दैट दे डोंट डिस्टर्ब योर डाइजेशन ऑल्सो। सो मॉनिटर करने पे इफ एवरीथिंग इज ओके, विद इन 1 वीक आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 10 डेज आइसोलेशन पीरियड इज देयर। एंड आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आपको आते हैं, मिलते हैं, तो वो ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के ही आपको उस कमरे के बाहर जो भी आपका खाना रखते हैं, दे कांट कम इनसाइड एंड मूव आउट। और बच्चों को हम आइसोलेट कर देते हैं अपने घर में कि सो दैट दे डोंट गेट इनटू दैट रूम वेयर दैट पर्सन इज आइसोलेटेड। हाँ, अगर आपको ब्रेथलेसनेस बढ़ती है, आपके सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं, देन वी हैव टू रेफर, सैचुरेशन डिस्टर्ब होती है, वी हैव टू रेफर टू द हॉस्पिटल। Yeah. So basically if we take all these precautions, तो अगर वायरस है तो भी फिर वो एलिवेट नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। बेसिक जो एक हमारा आयु संवाद का यही एक क्रम है कि कैसे हमने अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है। तो स्ट्रेस एंजाइटी के लिए प्राणायाम, जितने ये सब बताए गए हैं, आपकी विल पावर, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है, आपको डेफिनेटली वो वायरस बैक्टीरिया से बचने के लिए प्रेरित करेगा। बट लोग पैनिक में ही आए तो वो उसी में ही चाह रहे हैं कि नहीं मुझे हो जाना है। सो देयर आर लेवल्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इन्हीं चीजों को पब्लिक तक, कम्युनिटी हेल्थ तक, लाइक वी आर रीचिंग कम्युनिटी हेल्थ थ्रू दिस आयु संवाद। तो लोगों को ये पैनिक भी ना रहे, अलर्ट भी रहे, समझदारी भी रखें, और जितने भी बेसिक भारत सरकार की तरफ से मैसेजेस दिए गए हैं उसको फॉलो करें। Yeah. So apart from a healthy diet and regular exercise, are there any other steps that we need to follow even after we have recovered? Obviously, अगर देखा जाए अब वैक्सीनेशन के लिए कितना चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी उसने तो डोज लगवाई थी उसको फिर हो गया, कईयों ने 2 डोज पूरी कर ली उनको फिर भी हो रहा है, लेकिन जिनको हो रहा है उनको एक्चुअली सिवियर बॉडी में सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। इसलिए लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाने से आपका बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेगा, तो वो आपको प्रिवेंटिव मोड पे रखेगा। जैसे आयुर्वेद की दृष्टि से ये सारी मैंने प्रिवेंटिव बातें आपसे शेयर की हैं, ऐसे ही वो फैमिली हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वर्किंग, उनकी तरफ से वैक्सीनेशन जो भी ड्रग्स हैं उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है। आयुर्वेद ने भी सेम प्रोटोकॉल बनाया, जिसको मैंने आपको बताया नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, वो कोविड के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने बनाया। तो इसमें अब जिस तरह से हम सीन देख रहे हैं कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रही हैं, पीपल आर डूइंग सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही केमिस्ट के पास जाके एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का इसमें ज्यादा रोल नहीं होगा। इट्स बेटर टू वर्क आउट ऑन दीज थिंग्स इफ दे कैन, उनको एजुकेट करना है। और जो आपने ये बात अभी यू हैव मेंशन्ड दैट, तो आफ्टर रिकवरी ऑल्सो लोग बड़े कैजुअल हो जाते हैं कि मेरे को एक बार हो चुका है सो आई एम ओके नाउ, लेकिन वो इम्यून सिस्टम एज सच हमने फिर वही मिलना शुरू कर दिया, फिर हम वैसे ही नॉट मास्क, नो हैंड वॉश, वैसे ही गैदरिंग है, किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। एटलीस्ट इस वक्त इस सिनेरियो को समझकर तो किसी को ये सोचना नहीं चाहिए। बार बार कह रहे हैं लॉक योरसेल्फ, लॉकडाउन तो बाद की बात है, लॉक योरसेल्फ। आप अपने नॉट योर मेंटल वेलबींग, डोंट लॉक दैट। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करना, एक दूसरे से मिलते रहो, वीडियो कॉलिंग से बात करो, ना कि नफरत करो। इट हैज बिकम स्टिग्मा, जिसको हो जाए ओ गॉड दूरी से, वो गलत है। सो वी आर टीचिंग ऑल दीज थिंग्स। रिकवरी है उसके बाद भी वो उन्हीं पैरामीटर्स का ध्यान रखें, उन्हीं आप इवन आफ्टर यू आर पॉजिटिव,
आप रिकवरी पे हैं, आप ठीक हो गए हैं, तब भी आप ये कोविड का जो पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल है, आयुष क्वाथ का, अश्वगंधा, आंवला पाउडर, मुलट्ठी, ये सब चीजें आप, अनु तेल, गार्गल्स करना, स्टीम करना, ये सब आप उसके बाद भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So lastly, is there any message that you would like to give the audience? Message is that stay healthy and stay fit. घर पे रहिए, बहुत जरूरी है तो ही निकलिए, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाइए, वो फिजिकली भी मेंटेन होगा, मेंटली भी होगा, स्पिरिचुअली भी होगा, लेकिन इन सब के पीछे आपका जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव आउटलुक है, वो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। आपने खुद को बाहर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, बट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज सो दैट पीपल शुड स्टे and they don't infect others also, because इसमें सबसे बड़ा, एक बहुत छोटी सी जाते जाते बात बोलूंगी कि जैसे किसी के घर में केस आता है तो वो अपने बच्चों को नानी दादी के घर भेज रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बातें हैं कि प्लीज बच्चे जो हैं कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो सिम्टम नहीं शो करते, तो आपके जो बड़े हैं घर में, वो अगर कोई बीपी का पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, तो अगर उनको जाके वो वायरस इफेक्ट करता है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेटर है कि जहां पे आप हैं वहीं रुक जाइए, आप इधर उधर अपने आप को मत भागें। इन सब चीजों के साथ साथ जो एक्सरसाइजेज हैं ब्रीदिंग में, जैसे आपने बात की, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आजकल डॉक्टर्स इन चीजों को केयर कर रहे हैं। आप जैसे बैलून है, लाइक बर्थडे वाले जो बैलून्स होते हैं, आप उनको, गुब्बारे को फुलाइए। आप जैसे किसी को नहीं एक्सरसाइज करनी आती है, वो प्राणायाम नहीं जानता, उसको अनुलोम विलोम नहीं आता, सिंपल गुब्बारा फुलाना है, तो दैट इज, हम अपना जोर, हमारी जो लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, एंड दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द आउटर। सेकेंड, कैंडल्स जला के, जैसे हम बर्थडेज की कैंडल्स, उनको एक ही सांस में बुझाना है, तो जब हमारा जोर लगता है हम बुझाते हैं, हमारे लंग्स काम। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, वी कैन ऑलवेज वर्क आउट एट होम। तो जो लोग कहते हैं कि जिनके ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम और ज्यादा है। और यंग ग्रुप इस वक्त सेकेंड वेव में, जो यंगस्टर्स हैं, जो 20 साल से लेके 40 साल के हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है विद इन आवर्स। तो ये पैनिक सिचुएशन तब बन जाएगी जब लोग नहीं समझेंगे। इस वक्त डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बर्डन है, हॉस्पिटल्स पे बर्डन है, दे आर लाइक ऑक्युपाइड, वो अपनी जो कर सकते हैं दे आर डूइंग, पर वो बार बार यही कह रहे हैं आप घर रहो, जितने कम रहोगे उतने केसेस कम आएंगे, उतना उनके ऊपर बर्डन कम होगा। तो ये सारी जिम्मेदारी। एंड लास्ट फिनिशिंग नोट वुड बी, आयुष संवाद का जो एक मेन है, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, my health my responsibility. So we have to take this message forward, and we hope people learn from this, they remain active also, smart also, and they take care of their health also. So nice. Thank you so much, Dr. Kritika. Thank you you for being here with us and enlightening us with your knowledge. We're trying our best. Thank you so much. Thank you. So that was all for today. But if you want to see more of such useful and knowledgeable interviews, don't forget to subscribe to the channel. So that's it. Goodbye and have a great day.